Greetings to all the aspirants present out there. This is Chandigarh Civil Services. Aspirants, this is your Punjab Civil Services series. As we had started one series जहाँ पे we are targeting your Punjab Civil Services 2024 examination. So yes, in this particular section, we will be having a discussion about your CSAT part. So aspirant जैसे कि we are expecting in the 2024 there is a possibility जो आपका PCS है उसका examination जो है conduct होने की highly probability is there. So in this particular lecture we'll see your CSAT part which plays a very very crucial part क्योंकि जब हम examination pattern की बात करते हैं then CSAT itself is a game changer and it will decide your merit list also. Fine. So जैसे CSAT में जैसे if you all are familiar, there will be a general studies paper plus your CSAT part will be there. And yes, अगर हम 2020 का examination देखते हैं तो yes, CSAT जो था वो major game changer था. And yes, in the CSAT part, if we all are familiar, it is of the 200 marks. Fine. And there will be a 80 questions होते हैं. Fine. And 2.5 mark. So this particular plays a very crucial role. जैसे आपका if we talk about your general studies तो general studies में there are different types of things he is asking जैसे कि आपका geography हो गया, history हो गया, polity हो गया. In the similar manner when it comes to your CSAT part also he is asking a lot of topics. तो अगर generalized way में अगर हम देखें what are the different topics which are associated with it तो यहाँ पे आपका first topic आ जाता है that is your data interpretation. And yes, data interpretation DI plays a very crucial role when it comes to your CSAT part. जब हम 2020 का paper analyze करते हैं, so he asked the question around 15. So huge weightage of the data interpretation can be seen जब आपका PCS is concerned. So DI पे hold होना is very very important. Next is your logical reasoning. Logical reasoning में भी अगर हम बताएं तो around 20 to 25 question he asked. Getting? And yes, when it comes to the language part, fine, these all are the syllabus of your CSAT. Language में whether it's Punjabi and English, they will ask the question around. अगर दोनों को collectively बोला जाए तो yes, logical reasoning के accordingly जैसे इसमें है वैसे ही दोनों में around 20 से 25 question जो है हम expect कर सकते हैं. Then comes to your comprehension part. Fine, these all are your reading skills and basic grammatical. Fine, तो comprehensions में भी आपके 7 to 8 questions can be seen. And yes, next come your quantitative aptitude. Fine. So जब हम quantitative aptitude की बात करते हैं, so it is including around 7 to 8 questions. Fine. So quantitative aptitude में and last one is your that is your communication part also. Fine. तो वहाँ से भी आपके कुछ questions around 8 questions जो हैं आपके आते हैं अगर हम previous year का analysis करें. So based on this you have to channelize or strategize accordingly. Fine. अगर हम DI की बात करते हैं तो huge weightage is there. Logical reasoning 2025. Quantitative aptitude I will be taking but इससे पहले अगर एक चीज देखें तो quantitative aptitude में जो previous year का pattern रहा है he asked the question around 7 to 8 but there is a possibility कि in the जो आपका examination होगा he can change the pattern also but most probably will follow जो आपका already pattern चला है but question तो 7-8 question पूछे हैं but यहाँ पे अगर मैं topics की बात करूँ तो around 20 plus topics will be there. Fine. So that means कि 7 to 8 marks हैं. Fine. 7 to 8 questions हैं और 20 plus topics हैं. Fine. तो इसको करें या ना करें but yes, this will be a game changer. आपको करना ही पड़ेगा. And yes, when it comes to your quantitative aptitude, then यहाँ पे आपकी जो strategy होनी चाहिए that must be related to or कैसे you should proceed. जब हम quantitative की aptitude की बात करते हैं, there will be certain questions that is you have to do. So that means there are the must do kind of the topic जो आपको करने ही करने हैं. Next is your optional topic. Optional topics fine but ऐसा नहीं है कि optional topics हैं तो आप उसको discard कर देंगे. Why? Because it's very easy कि 200 marks में से around 120-130 लेना it's easy. But when it comes to the cutoff clear करनी है so you have to be around 170 and 180 around.
फॉर दैट ये जो ऑप्शनल है दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स, फाइन, विच जहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बट येस दे आर आस्किंग वेरी इजी क्वेश्चन. सो दोज कैंडिडेट यहाँ पे जैसे ऑप्शनल में जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन कम्स टू योर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंसुरेशन इज देयर, फाइन. और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, जितना भी आपका अर्थमेटिक आ गया, देन आपका नंबर सिस्टम आ गए, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द important topic based on your previous year pattern. Getting? But yes, the candidate जब हम CSAT की बात करते हैं, those candidates who are appearing in the PCS examination, they are coming from the varied different type of the background. तो फिर approach कैसे है? Fine. तो initial going के लिए will focus on these easy going topic. Why? Because what is यहाँ पे आपको एक confidence और एक boost मिल जाएगा कि yes CSAT जो है एक फोबिया की तरह मॉन्स्टर की तरह डेवलप नहीं होगा, फाइन. तो दैट मीन्स कि यहाँ से जब आप इजी टॉपिक उठाएंगे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा एंड यस दैट विल बी अ क्वेश्चन को अप्रोच करना बहुत इजीली हो जाएगा, फाइन. सो यस इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई विल बी टेकिंग योर फर्स्ट टॉपिक दैट इज योर permutation and combination, fine. So permutation and combination से last 2020 में around 3 questions were there, fine. ऐसा नहीं है कि this not playing an important role. Sometime 2-3 questions will make a huge difference, fine. So let's begin. जब हम permutation की बात करते हैं, पहले let's try to understand what exactly the meaning of permutation and combination, fine. जैसे कि for example अगर मैं combination एक सिंपल टर्म में बोलूं, परम्यूटेशन इज नथिंग बट दिस इज द अरेंजमेंट. अगर आपके पास कोई भी नंबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 या आपके पास कोई अल्फाबेट्स हैं, अगर उनको अरेंज करना है, फाइन, फॉर एग्जाम्पल अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग ACT और उसको अरेंज करना है फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर, जैसे फॉर एग्जाम्पल CAT देन ACT, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, अरेंजमेंट आप चीजों का कर रहे हैं बट ऑर्डर भी एक डेफिनेट ऑर्डर में यू आर अरेंजिंग द थिंग्स, फाइन. बट जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट दिस इज नॉट सिंपल टर्म, दिस इज अ सिलेक्शन. अब सिलेक्शन आप जैसे मर्जी कीजिए, फाइन. ए को पहले ले लीजिए, बी को बाद में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स सिलेक्शन होगी बट ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. Getting? So this is a theoretical understanding of the permutation and combination. Let's see. जैसे for example अगर मेरे पास 3 persons हैं, fine, 3 person हैं, I'm tagging it as a A, B and C. Getting? अब इन 3 person को अगर मुझे select करना है, that means selection करनी है. So how I can select? Order matter नहीं करेगा selection में. So I can choose like this A, B, C. Getting? ऐसा नहीं बोला है कि A को पहले लेना है, B को बाद में लेना है. इन एनी मैटर आपको सिर्फ 3 पर्सन चूज करने हैं, फाइन. ABC हो सकता है, देन कम्स टू योर ACB भी हो सकता है, देन BCA भी हो सकता है, BAC भी हो सकता है. What else can be made? That is your CAB भी हो सकता है एंड देन CBA भी हो सकता है, फाइन. सो कितने अरेंजमेंट हो गए 3 पर्सन को चूज करने के? दैट इज योर 6 ways. That is of 6 ways of selection. बट यहाँ पे क्या है, हम रिपीटिशन भी कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है. बट यहाँ पे when it comes to the arrangement वाला पार्ट, when it comes to the permutation, we are just arranging the things और जहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर करेगा. Getting? So यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन में आपका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है. Getting? So this is the very basic difference between these 2 things. Fine. And yes, one more thing, जब हम permutation और combination की बात करते हैं तो इससे पहले कुछ आपको चीजें पता होनी चाहिए. There are the certain ingredients which is required. तो क्या क्या है? First thing is your, all this is based on the basic concept of counting. ये सारे ही कुछ बेसिक कंसेप्ट है काउंटिंग के जिस पे बेस्ड है. मतलब कि फर्स्ट प्रिंसिपल आपका क्या बोलता है कि अगर मेरे पास n वेज हैं, अगर n वेज हैं, n तरीके हैं किसी पर्टिकुलर चीज को करने के, अगर मेरे पास n वेज हैं किसी पर्टिकुलर चीज को करने के एंड n वेज हैं टू डू अनदर थिंग, फाइन,
और दूसरी ही चीज को करने के मेरे पास n तरीके हैं, तो बोला कि कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे. सो योर आंसर विल बी टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी योर m क्रॉस n. एक चीज को करने के m तरीके हैं, दूसरी किसी चीज को करने के n तरीके हैं, तो जो टोटल वेज होंगे दैट विल बी m into n, and this is nothing but this is a product rule. Getting? This is a product rule. For example, if I am telling you आपको GS स्टडी में स्टडी करने के लिए आपके पास 4 बुक्स हैं. Let us suppose B1, B2, B3 and B4. Along with that, you are having, let us suppose आपके पास नोट्स बनाने के लिए, let us suppose आपके पास नोट्स बनाने के लिए 3 पेन हैं. Fine. P1, P2 and P3. And I am giving you कि आपको एक बुक चूज करनी है विद दैट 1 पेन. तो कितने वेज होंगे उसको चूज करने के लिए, कितने ऑप्शंस होंगे? आई कैन बी लाइक B1 and P1, then B2 and P2, then B3 and P3. इट कैन बी देयर. फाइन. B1 के साथ आप फाइन P1 कर सकते हैं, B1 के साथ P2 कर सकते हैं, B1 के साथ P3 कर सकते हैं. वैसे ही B2 के साथ P1, B2 के साथ P2 and B2 के साथ P3. फाइन. हर एक के पास 3 ऑप्शंस हैं लाइक दिस. गेटिंग? फाइन. एंड देन B3 की अगर बात करेंगे तो B3 के पास P1, बुक 3 एंड बुक 3 के साथ P2 पेन ले लीजिए या बुक 3 के साथ P3 पेन ले लीजिए. एंड वैसे ही इन द सिमिलर मैनर B4 में P1 आएगा, देन B4 में P2 आएगा एंड B4 में आपका दैट इज योर P3 आ जाएगा. सो कितने टोटल वेज हो गए? दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर 12 वेज हो गए. 12 वेज हो गए. तो सिंपली अगर हम ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं बना सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, टाइम कंज्यूमिंग. तो डायरेक्टली m into n. m कितना है 4 और यहाँ पे कितना है n कितना है 3. तो देयर विल बी आ 12 वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स. सो प्रोडक्ट रूल आपका बोलता है कि अगर m तरीके हैं किसी चीज को करने के और n अनदर थिंग को है, तो टोटल दोनों को अगर करना है दैट विल बी a m क्रॉस n. सो दिस इज अ जनरलाइज्ड योर प्रोडक्ट रूल. वैसे ही अनदर दैट इज योर एडिशन का भी आपका पर्टिकुलर रूल है. फाइन. एडिशन रूल क्या होता है? फाइन. एडिशन रूल आपका बोलता है कि अगर देयर आर n वेज ऑफ डूइंग द थिंग एंड देयर इज n वेज टू डूइंग अनदर थिंग को करने के n तरीके हैं और दोनों ही पूरा चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती हैं. जैसे पहले क्या हो रहा था, दोनों साइमल्टेनियसली हो रही थी, यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं है. ईदर केस है तो टोटल वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स विल बी m plus n. दैट इज योर एडिशन रूल. गेटिंग? साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती है. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे मैंने एग्जाम्पल कोट किया कि अगर आपके पास अगर 4 आपके पास बुक्स हैं और 3 पेन हैं, तो मैंने बोल दिया कि आपको सिर्फ इधर पेन लेना है या बुक लेनी है. तो उस केस में आपका देयर विल बी अ टोटल वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स विल बी m plus n. तो जो टोटल चॉइसेस होंगी आपके पास दैट विल बी m plus n. सो अगर कैंडिडेट्स अगर आप इसको देखें तो दिस इज नथिंग. आपका जो प्रोडक्ट रूल है, फाइन, जो प्रोडक्ट रूल है और जो आपका एडिशन रूल है, दे आर नथिंग बट दे आर टेलिंग यू अबाउट द और एंड कंसेप्ट. फाइन. तो जब आपका और लगा होगा तो देयर विल बी अ व्हाट? जब आपका और लगा होगा देयर विल बी अ व्हाट? आपका एडिशन रूल रहेगा. फाइन. देयर विल बी अ एडिशन रूल. और जब आपका दोनों ही चीजें लेंगे देयर विल बी अ एंड काइंड ऑफ कंसेप्ट विल बी देयर. तो अगर क्वेश्चन में और है तो मतलब कि आपको एडिशन करनी है. ईदर केस है. अगर आपका एंड है तो दैट मीन्स बोथ यू हैव टू कंसिडर साइमल्टेनियसली. गेटिंग? सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग रिगार्डिंग योर दैट इज योर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. क्योंकि जब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो दीज ऑल आर बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर कंसेप्ट. फाइन. एंड यस, वन मोर थिंग. अगर सपोज कीजिए इसी को, फाइन, अगर मैं एक और कंसिडर करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बोला कि हाउ मेनी, कितने 3 डिजिट के आप नंबर बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है और आपके पास ऑप्शन जो है, जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, आपके पास डिजिट्स जो हैं 1 2 3 एंड 4 5 है और आपको एक कंडीशन दे दी कि रिपीटेशन अलाउड है. रिपीटेशन अलाउड है तो कितने वेज होंगे? फाइन. अब इस बॉक्स को अगर फिल करना है तो मेरे पास 5 चॉइसेस हैं. अगर इस बॉक्स को फिल करना है आई एम हैविंग 5 चॉइसेस. फाइन.
आई कैन टेक 1 2 3 4 एंड 5. सो इसको भरने के तरीके 5. देन जब वंस एक मैंने नंबर यहाँ पे टैग कर दिया, देन कम्स योर सेकंड प्लेस. अब रिपीटिशन अलाउड है. अगर मैंने यहाँ पे 1 फिक्स किया है तो 1 को मैं यहाँ पे भी ले सकती हूँ. तो इंस्टेड एक नंबर फिल करने के बाद भी मेरे पास चॉइसेस उतनी ही है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है. तो यहाँ पे भी अगेन कितने हो जाएंगे 5 ऑप्शन एंड लास्ट में भी क्या हो जाएगा 5 ऑप्शन. एंड यस द टोटल वेज विल बी योर 125. सो दिस इज जब आपकी रिपीटिशन अलाउड होगी. बट दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है. अगर एक बार जो नंबर ले लिया उसको आप फिर से नहीं ले सकते हैं. तो फिर अगर मैंने 1 यहाँ पे फिक्स कर दिया, इफ आई एम फिक्सिंग 1, तो 1 गया एंड आपके पास कितने बचे 2 3 एंड 4 5. तो 4 नंबर्स आपके बचे. सो यहाँ पे चॉइसेस क्या हो जाएंगे 5 4 एंड 3. फाइन. 5 4 का 20 एंड 3 दैट इज योर 60. So this is the 60 ways of selecting the things. These are the permutation and combination part. Fine. So in this particular session, these are the just basic thing. So देखते हैं सबसे पहले that is your combination part. क्योंकि combination जो है that itself is plays a very important role. Fine. तो जब हम combination की बात कर रहे हैं, fine. Combination is nothing but this is a selection and permutation जो है that is your permutation. आपका क्या रहता है that is the arrangement of the things. Fine. Okay. So first thing, इससे पहले एक और चीज जो आपके लिए important है that is your, let's see how the approach will be there. Fine. See, first is your हमारी approach जो रहेगी how we will proceed the things. First is your factorial. Factorial plays an important role when it comes to your combination part. अब factorial होता क्या है? For example, आपने देखा होगा there is a 5 factorial. Fine. 5 factorial या इसको ऐसे लिखा जाता है like this. This is nothing but mostly क्या रहता है इसमें हम natural number को लिखते हैं in a decreasing order with the base number. यहाँ पे 5 है तो इसको decreasing order में लिखिए और आपको कहाँ तक जाना है up to natural number. Natural number कहाँ तक होते हैं 1 2 3 4. whole number 0 से start होते हैं, not whole number. ये बोल रहा है natural number तक जाना है. फाइन. वैसे ही अगर मेरे पास ABC थिंग है, फाइन, और उनका मुझे क्या करना है आपको अरेंजमेंट करना है. फाइन. यू हैव टू अरेंज द थिंग्स, सिलेक्टिंग द थिंग्स. फाइन. सो तो फैक्टोरियल जो है आपका इट इज नथिंग. फैक्टोरियल आपका अरेंजमेंट ही बताता है. फैक्टोरियल इज टेलिंग द अरेंजमेंट. जैसे मैंने 3 डिजिट का नंबर बनाना था, किसे बनाना था रिपीटिशन अलाउड नहीं थी और मेरे पास नंबर थे 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे क्या आ गया 5 देन 4 देन 3. तो एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रहे हैं. फाइन. सो आपका फैक्टोरियल एक तरह से अरेंजमेंट ही क्या करता है प्रिडिक्ट करता है. फाइन. सो लेट्स सी फर्स्ट फैक्टोरियल. आपको कहाँ तक फैक्टोरियल आने चाहिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, यू मस्ट बी फेमिलियर. फाइन. फॉर एग्जाम्पल 1 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1. देन कम्स टू योर 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2. 2 into 1 करेंगे दैट विल बी 2 एंड 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 that is 6. Then comes to your 4 factorial. 4 into 3 into 2 into 1. So that will be equal to your 24. Then comes to your similar manner 5 factorial will be 120. आपको around 10 factorial तक आने चाहिए. 6 factorial will be equal to 720. Then comes to your 7 factorial. That will be equal to 5040. Then comes to again 8 factorial. That is your 8 factorial की अगर बात करते हैं that is again equal to 40320. Another way, अगर आपको 7 factorial पता है so that means कि एक नंबर ही एडिशन हुआ है उसको again 5040 को again इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will get the answer. Then comes your 9 factorial. That will be equal to 3628880. And last one is your 10 factorial. That is equal to यहाँ पे एक और 0 लग जाएंगे that is 3628800. So this is about 10 factorial तक तो आपको आना ही चाहिए. Fine. Very important. And one more thing. अगर मैं बोल रही हूँ कि factorial कुछ नहीं है, एक तरह से arrangement ही है. Fine. This is a arrangement kind of a thing. अब question arise होता है कि जो 0 factorial है क्या उसकी value क्या 0 होगी? So the answer is no. 0 factorial will be equal to 1. For example,
अगर कोई चीज जैसी पड़ी है, फाइन, अगर वी आर नॉट अरेंजिंग इट, इफ द 3 पर्सन इज सिटिंग इन अ रो, फाइन, और हम उनको शफल नहीं कर रहे हैं, तब भी itself it is a arrangement. मतलब no arrangement is itself is a arrangement. Sometimes क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये arrangement हमारे accordingly arrangement नहीं है, but other person के लिए arrangement है, fine? So यहाँ पे no arrangement will also be arrangement. That's why 0 factorial will be equal to your 1, fine? So जो कभी कोई arrangement है भी नहीं, वो still count किया जाएगा and that will be a 1. Fine. So this is how. So combination कुछ नहीं है. This is the representation ways of selection. 3 लोगों को select करना है, तो उनको कैसे कैसे select कर सकते हैं? That is the only ways. Fine. And yes, when we look at into the formula for the combination, do remember जब हम combination की बात करेंगे ना, factorial का usage बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा. Fine. For example, आपने lower classes में पढ़ा होगा, combination is अगर मेरे पास n टोटल नंबर ऑफ पीपल है, टोटल पीपल है, फाइन, और उनको सिलेक्ट करने के r तरीके हैं. नंबर ऑफ सेक्शन कितनी है? r है. सो n इज द नंबर, r इज द सेक्शन. इसके बेस पे लिख दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. दिस इज द फॉर्मूला, फाइन. बट क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे प्रोसीड करेंगे कि कैसे करेंगे, फाइन. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट, एंड क्योंकि सिलेक्शन है, सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 5. 3 को बोला सिलेक्ट करो, ये सिलेक्शन थी, आर सिलेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और एन जो है वो टोटल है. तो 3 को अगर 5 से सिलेक्ट करना है तो क्या आ जाएगा? 5C3. और फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चलूंगी, देयर विल बी अ 5 factorial divided by 3 factorial. 5 minus 3 is 2 factorial. That is equal to 5 base की तरफ पीछे जाइए, that is your 3 factorial and then 2. 3 से 3 cancel, 2 से ये, fine. So this will be a 10. So this is the way of solving the question. But क्या हम इस तरीके से proceed करेंगे? Fine. So the answer is no. Fine. We'll simplify this particular formula and we'll try to कि कैसे इसको हम कर सकते हैं. How we can solve it. Fine. So see, इसको solve करने का तरीका कैसे है? How we can solve this particular? Fine. यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास formulas के accordingly proceed नहीं करना है, तो कैसे? अभी हमने देखा कि 5C3 किसके इक्वल है? 10. Getting? अब 5C3 अगर 10 है, another way of solving it कैसे कर सकते हैं? That is your 5C3 को आपने कैसे करना है? ये देखिए, 5 को आपने वेरी इजी मेथड ऑफ सॉल्विंग इट इज, आपने 5 को जो बिल्कुल ऊपर लगा होगा उसको उतने स्टेप बैकवर्ड जाना है जहां पे आपका बेस में लिखा है. अब नीचे 3 है तो 5 को 3 टाइम पीछे लेके जाइए, 5, 4 and 3, और जो नीचे दिया है उसका डायरेक्ट फैक्टोरियल लिख दीजिए. देखते हैं 10 आंसर आता है कि नहीं. 5 into 4 into 3 डिवाइड बाय 3 into 2. Getting? So that means यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये, आंसर इज योर 10. So instead of using that formula NCR, that is your n factorial, r factorial, n minus r factorial, what you can simply do, 5 है, बेस में जो नंबर है उतने रिवर्स गया दो, that is your 5, 4, 3, और जो नीचे दिया है उसका फैक्टोरियल लगा दीजिए. अब एक और क्वेश्चन, अगर जितना बेस यहाँ पे कम होगा उतने ही मुझे मल्टीप्लिकेशन करिए, नंबर डिजिट कम होंगे, फाइन. तो इसके लिए जब भी आपका NCR होगा, ऑलवेज ट्राई देखिए कि बिकॉज फॉर्मूला आता है मैथ्स में NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. तो आपने देखना है कि NCR लेके मेरी चीजें सिंप्लीफाइड हो रही हैं या NCN माइनस R. जैसे 5C3 है, 5C3 विल बी इक्वल टू 5C. N क्या है, R क्या है? N इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 3. तो n माइनस 3 क्या आ जाएगा? 2. अब यहाँ पे 3 रिवर्स गियर लगाने हैं, यहाँ पे 2 ही लगाने हैं, तो मैं कौन सा लूँ? 5C3 या 5C2? Will take 5C2. So there it will become 5 into, यहाँ पे भी देख लीजिए, इसको सॉल्व करके 10 ही आंसर आता है. 5 into आपका एक रिवर्स गियर करना है तो 4 डिवाइड बाय 2, अगेन ये कैंसिल हुआ एंड दैट इज इक्वल टू 10. सो दैट मीन्स कैंडिडेट यू हैव टू सी कि मुझे NCR लूँ या NCN माइनस R लूँ, और फॉर्मूला जब आपने सॉल्व करना है सो यू विल नॉट यूज दैट मेथड बट यू विल यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द
things. Fine. यहाँ पे this is the easiest way of understanding the things. So let's see, based on this factorial we are already observed. Fine. So first question regarding it. Let's see. In how many ways we can select? Question आपका बोल रहा है. देखिए जो हमने अभी तक पढ़ा, this is just a understanding of the concept. अब अप्लाई करेंगे कि वेदर वी आर जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं. तो देखिए ये बोल रहा है कि आपको 3 सिलेक्ट करने हैं, मतलब कि ये 8 दिया है और 8 जो है वो टोटल है. तो NCR दैट इज इक्वल टू 8C3. अब 8C3 लेना बेटर है या 8C, इसे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? फाइन. अगर इसको आप माइनस कर रहे हैं, फाइन, सो देयर विल बी अबाउट 8C3 और 8C5. यहाँ पे मुझे 3 स्टेप जाने पड़ेंगे. यहाँ पे 5 तो इसको लेना नहीं है, जो गिवन है वही सही है. तो यहाँ पे 8 इंटू 3 स्टेप बैकवर्ड जाइए, 7 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 2. ये कैंसिल हुआ एंड 8 7 का दैट विल बी इक्वल टू 56. So this is the answer. Fine. Through this question we are understanding the NCR. R is the selection, N is the total. Fine. So this is the question. Next question. Find the value of 10C3. You can take a pause. Fine. आप वीडियो को पॉज करके you can आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि कैसे रहेगा. Fine. So 10C3 की अगर हम बात करें, again 10C3 will be equal to, that is equal to 10 into 9 into 8 divide by 3 factorial, that is 3 into 2. So 3 से 3 and this is your 4. So answer will be equal to 10 into 12, that is equal to 120. Getting? So this is about your 120. Next question, 60C60. Fine. Yes, 60C60 की जब हम बात करते हैं, so that is your, it is talking about your NCN. Fine. Do remember आपकी अगर n ही पर्सन है, n ही चूज करने हैं, that will always equal to 1. जैसे C3 है, 3C3 है, that is again 1. अगर आपके पास NC1 है, that is equal to always equal to 1. कि जितने मर्जी लोग हो जाएं, आपको एक ही चूज करना है. Fine. अगर आपके पास n लोग हैं और आपको कुछ नहीं चूज करना है, that will be equal to, that is always equal to, that is equal to 1. Fine. तो चाहे ये है, इट इज इक्वल टू 1 एंड NC1 इज इक्वल टू n. तो इस हिसाब से आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट कम्स टू योर इन हाउ मेनी वेज. दिस क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज वी कैन a group of 5 men and 2 women we made out of total of 7 men and 3 women. Fine. So he is asking the question. Fine. इसमें कुछ combination करके आपका क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है. Fine. तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या है 5 men and 2 women है और कितने टोटल है आपके पास? टोटल 7 men है और 3 women है. आपको कितना ग्रुप बनाना है, कितना चूज करना है कि 5 men fine out of 7 and 2 men out of 3 women. और यहाँ पे क्या लिखा है? That is your and है. तो अभी हमने पढ़ा and के केस में क्या रहता है? That is both you have to choose simultaneously. So that will be a what? Cross sign will be there. वही जो generalize आपका product of what? कि जब आपका addition वाला है, addition rule है और product rule है, कि अगर product rule में क्या था? दोनों चीजें simultaneously लेनी है. Simultaneously है तो और वाला केस है, मतलब multiply. और either है मतलब कि तब आ जाएगा or, this particular or, तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्लस साइन विल बी देयर. फाइन. सो इससे क्वेश्चन आपका कैसे बन जाएगा? 7 out of 5. सो देयर विल बी अ 7C5 एंड है तो मल्टीप्लाई एंड देन 3C2. फाइन. इक्वेशन बन गई. उसके बाद तो सॉल्यूशन तो इजीली हो जाएगा. एंड अगेन जब आप सॉल्व करेंगे यू हैव टू सी 7C5 लेना बेटर है या 7C2, क्योंकि हमें पता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. फाइन. तो 7C5 लूं या 7C2 लूं? यस 7C2, क्योंकि इसमें 2 ही स्टेप बैकवर्ड चलने हैं, यहाँ पे 5 चलने पड़ेंगे. मल्टीप्लिकेशन एनहांस हो जाएगी. प्रॉब्लम. फाइन. एंड 3C2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3C2 इज इक्वल टू 3C1. तो ये बेटर है लेना. तो 3C1 दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू 7. 2 स्टेप बैकवर्ड गए, नीचे 2 आया, देन 3, 1 स्टेप बैकवर्ड गए. फाइन. एंड देन आपका 1 फैक्टोरियल इज देयर.
फाइन. जब आप सॉल्व करेंगे डायरेक्टली NC1 is again 3. So यहाँ पे क्या है 3, that is your 7 3 का 21 into 3 करेंगे and answer will be your, that is your 63. So answer option A जो है that is correct. Fine. So this is the way, this is to approach the question. Fine. You have to be very precise while understanding the keywords. If you are not catching that, it will cause a problem. Next is your, in how many ways a committee consisting of 5 men and 6 women can be formed from 8 men and 10 women. Same question के approach. तो यहाँ पे क्या जाएगा, टोटल 8 हैं और कितने चूज करने हैं मैन 5. सो 8C5 क्रॉस में 10 वुमेन है और 6 आपकी 10 टोटल है, उसमें से 6 चूज करने हैं. तो देयर विल बी अ 10C6. अगेन इसको आपने देखना है 10C, दैट इज योर 10C6 आ जाएगा. फाइन. दैट इज योर 5 men. ओके फाइन. 5 men and 8 yes and 10 let me see and yes 6 आ जाएगा. तो जब आप इसको प्रोसीड करोगे फाइन, सो यू कैन से यहाँ पे क्या है 8C5 है. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बेटर है 8 इंटू 7 इंटू, अगर 8C5 है तो आई कैन राइट इट डाउन एज अ 8C3 ऑल्सो. बेटर है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. और यहाँ पे 10C6 को 10C4 भी लिख सकती हूँ. फाइन. यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 3 से लीजिए, दैट इज 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2. सॉल्व कर लीजिए फिर. इसके बाद तो कुछ है नहीं. फाइन. तो ये 6 से 6 कैंसिल हुआ, 8 7 का 56 आ जाएगा. ये देख, एंड 4 2 का 8 आ जाएगा. यहाँ से ये कैंसिल हुआ 3. दैट इज योर फाइन. यहाँ पे क्या आ जाएगा 56 इंटू 30 इंटू 7 फाइन, या 21 इंटू 10. सो दैट विल बी इक्वल टू, सो योर आंसर विल बी इक्वल टू, लास्ट में अगर आप देखेंगे तो समवेयर यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप बेस से भी पता कर सकते हैं. फाइन. अगर आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 तो वैसे ही रहेगा, 10 तो वैसे ही रहेगा. 21 जो है तो लास्ट में क्या है यहाँ पे 2 इंटू 6 काइंड ऑफ, तो 10 60 काइंड ऑफ थिंग विल बी बेस पे आएगा. तो पूरा आंसर निकालने की बजाय ये सामने ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज योर यूनिट डिजिट पिक करो, उससे आंसर पता चल जाएगा. आंसर विल बी 11760. फाइन. सो दिस इज अबाउट फाइन. हमने कुछ क्वेश्चंस, अगर आज का सेशन की अगर बात करें, सो वी जस्ट हैड अ डिस्कशन about the basic, और कुछ questions based on it we had a discussion. Fine. So this is about your today's session, जहाँ पे हमने permutation और combination का सिर्फ basic understanding की है with a certain question. Yes, in the upcoming videos we'll have the in-depth discussion about the permutation and combination. हमने सिर्फ combination किया है. Fine. तो just clear your basic concept and based on it हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे. फाइन. तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर था, जहाँ पे हमने सिर्फ आपका बेसिक एंड और जो है हमने डिस्कशन किया है, बेस्ड ऑन इट हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं. इन द अपकमिंग एटलीस्ट और एटमोस्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, द नंबर ऑफ डायगोनल्स, पैलोग्राम एंड हैंडशेक, एंड योर कॉम्बिनेशन पार्ट विल बी डन. So aspirants, this is all about your today's session. So stay tuned and connected, and yes, all the best. So thank you.